You did not see? Anything. I just saw purple color. When I was in France, I saw purple color, and then that's what I remember. Okay. I saw black background and the ray of purple color. There was a small little ray, and that color became bigger. Okay. That's. So what you wanted? So I want just to ask, my thing was, is that also a kind of trance, or is there something hidden, or I didn't saw anything? What can be the problem? See, you have to understand what exactly is trance. Trance is not a sleep state. That means when you are in a sleep state, you are not aware about your surroundings. You don't know anything happening around you. You are completely, your conscious mind and is completely deep sleep. Here, this is a state just before the sleep, where your mind is active. You are aware about your surroundings, but still you are in a very, very deep state where your conscious mind is not interfering in the process. अगर आप सो जाओगे ना, तो सर क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा. आप सोए नहीं हो इसलिए आपको सर की सारी बातें सुनाई भी पड़ रही है, माइंड उसके ऊपर एक्ट भी कर रहा है. सो इफ़ यू गेट इन टू डेल्टा स्टेट, then you will not be able to do the same. Getting my point? That music, I was listening that music, but I can't remember after that. That is what, if you, when you come back, if you are not remembering everything, that means you were in a theta state. जब आंखें बंद होती है तब लगता है सब पता है, बाहर आंख खुलती है तो पता चलता है कुछ भी नहीं पता, थोड़ा थोड़ा कुछ याद रहता है, glimpses of it. That is theta state. That if I pass a judgment on someone, that, and specifically when it is in a presupposition state, when you are speaking in present continuous, the person straight away takes it seriously. For the teachers it is very important, but even when we speak that way and we pass a judgment, how people get affected. Okay, मतलब किसी को कह दिया you are not good enough, ये नॉर्मल नहीं है, मुझे लगता है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है. ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इट हिट्स हार्ड एंड इट इज़ अ परमानेंट चेंज. किसी को बचपन में कोई बात कह दी हो, वो उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलती है अगर हील नहीं किया गया तो. एंड आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट हिज सन ऑल्सो. लास्ट ईयर वी हैड अ वर्कशॉप एंड हिज सन केम हियर फॉर सम पर्पस. यू नो, व्हेन can I share that a small story that his father unintentionally locked him in a room for, and every parent does it some day, and get irritated, and you think you need to punish your child, not for a bad intention but for a good intention. He did the same, but he was unable to forget, and there was a retrospective effects of it also. So and to decode the child's communication, when she came out with all the suggestions and all the points, I found out that there is a pattern, and that is a repeated pattern, that the child is in comparison with everything, is always comparing things. तो हमारी लाइफ जो होती है ना, इट इज़ रनिंग थ्रू पैटर्न्स. कल हम जनरलाइजेशन की बात कर रहे थे. सो इफ़ वन ऑफ सच कोड इज़ रिमूव्ड, मैनी मोर कोड्स विल बी इफेक्टेड. If you are in a generalized state and you are doing a certain behavior, maybe comparison, maybe jealousy, if you are able to even remove or alter one particular behavioral pattern, it is going to affect all the other behavioral patterns as well. और आपको मैं बताता हूँ दुनिया में सबसे बड़ी चीज़, if you are aware that what is right and what is wrong, you don't do 50% of the mistakes. ये सब हमारी जानकारी ना होने के कारण हो रहा था. मुझे पता ही नहीं था कि आई शुडंट डू दिस.
But when I come to know, at least I don't sabotage myself, I don't try intentionally hurt someone else, believing that अगर मैंने ये statement बोला, how will the other person feel and how it is going to affect the other person. मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता होगा कि ये तो NLP वर्कशॉप करते हैं तो इनकी लाइफ में तो सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, राइट? बट एज आई सेड, डोंट टेक इट पर्सनली, बट इट डजंट वर्क ऑन द वाइफ्स. And if you and when I try to apply that on my wife, she says, please keep your NLP workshop in the hall itself, don't try and apply this at home. So it may happen with you, with your husbands also, maybe. And at the same time, for अगर किसी प्रधानमंत्री का बच्चा है ना, तो उसके लिए उसका पिता ही है, वो प्रधानमंत्री नहीं है. तो no matter how intelligent you are, how wise you are, how clever you are, for your children, you are a parent. उन्हें आपकी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? So unfortunately, my son, and I'm going to add up one more thing. When you are entering a phase where you have a choice that you are already into one profession, whether you want to add up another profession to your life, is that do you want to help people to gain happiness for money or without money? That's your call. If you want to make it profession, you can do it. It is an amazing profession. People charge 5,000, 10,000 rupees for 1 hour session because it changes the whole life. You think about it. एक इंसान की ज़िंदगी में अगर एक लिमिटिंग बिलीफ चेंज हो जाता है ना, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है. सिर्फ इतना सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम गिविंग योर एग्जाम्पल. इनका सिर्फ इतना सा समझ जाना कि मेरी लाइफ में कोई घटना घटी, उससे मेरी ज़िंदगी के ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है. इट कैन चेंज हिज होल लाइफ. Just thinking, changing one belief can change his whole life. Now he can start finding out opportunities, what I can do, how can I grow, how can I make more money, how can I grow in my business, in my family. Just this awareness can change his own life. तो ऐसा किसी की भी लाइफ में एक चीज़. My son doesn't eat any vegetables, any fruits. He used to when he was in maybe 3 or 4 years. Now he is in 12th standard. And right now also, he doesn't eat any vegetables. There are only 5 or 6 things which he eats. He eats rice and dal, that too cooked by his mother. Typical dal which I can't eat. It is like a very different texture. I cannot. There should not be any coriander, nothing added to it. Then rice and dal. If he eats puri, then it should be only puri with no vegetables. He eats only roti, only paratha. If we go to a restaurant, he eats butter roti and french fries. Now I can't help it. So this is one more add-on I am trying to tell you, that when you are given a chance to help someone, you never know how you are getting a chance. It's an opportunity. मुझे लोगों ने US से, UK से, France से भी, I have a message in my mobile. Somebody is approaching from France. She is in touch. So you don't know people how they are going to approach you from all across the world. Okay. And probably you are the assigned healer or a person assigned for their life to get them out of their pain. Right? You are an assigned one. But if you try consciously by choice that I want to change his life or her life, you cannot change it. जैसे डॉक्टर के पास कौन पेशेंट आएगा उसको नहीं मालूम होता, कौन पेशेंट किस डॉक्टर से ठीक होगा उसको नहीं मालूम होता. It's like that. So you're doing your best, but you never know that who is going to be assigned to you. So it's a very noble profession if you do it ethically. And I have come to a conclusion also that he has a serious past life issue. Because I have done couple of healings, it responded, but he came back. So I'm waiting for that there is an assigned healer who can do the needful. I cannot do. मेरा मतलब ये है कि आप अपने घर, जैसे एक डॉक्टर अपना खुद का ऑपरेशन, अपनी सर्जरी नहीं कर सकता, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर में डायरेक्टली किसी की हेल्प कर सको. यू फील सो हेल्पलेस एट टाइम्स, यू नो.
तो ये कुछ चीज़ें हैं बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन दैट ऑलवेज एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट इन योर लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, बट अवेयरनेस. अब इसका एक फ़ायदा क्या हुआ, you know, he is taller than me, he is almost very good build. From the very beginning I knew that he is not eating vegetables. I never brought to his awareness, I never said अगर तूने सब्जी नहीं खाया ना तो तेरी हाइट छोटी रह जाएगी, तेरे को बीमारियां हो जाएंगी. I never said that to him. I knew that he is going through this phase. बट इफ़ आई सेड, मैंने अगर इसको रिपीटेडली 3-4 बार बोल दिया ना कि अगर तूने सब्जियां नहीं खाई, वेजिटेबल, तूने मालूम है तेको विटामिन मिनरल. मैं हमेशा ये सोचता था, हमारे घर के सामने भील लोग होते हैं, मतलब इट्स अ जाति who are generally they are always nomads, they never make homes, they move here and there, and they do generally construction labor work. So they generally cook big chapatis, thick one, you know, with their hands. In the morning they pack and they go. So I always see them, they are not getting any minerals, they are not getting any vitamins, no fruits they are eating. But the next hour I see he is picking up 20 bricks on his head and going to 6th floor. The whole day he is doing this activity. Where is he getting this vitamins and minerals from? Your mind is so intelligent. If you make that, अभी पता है सबसे बड़ी अवेयरनेस प्रॉब्लम क्या है? हम सबको बता देते हैं अगर तुम्हारा B12 कम हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये हो जाएगा. जिसको पता नहीं था B12 कैसे टेस्ट किया जाता था, तब भी B12 कम होता था, लाइफ नॉर्मल चलती थी. समटाइम्स अवेयरनेस, आई एम टेलिंग यू वन एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू a story. There was a healer, a person who was not trained, he was not a doctor, but he had a very good hand on surgery. So he was like living in a small town, and whenever people used to have some injury or major injury, they used to come to him, and not a single case was a failure. They used to come to him, he used to use his old knife and whatever instrument he had to do the surgery. He used to cut, put some herbs, pack it with some cloth and send it, and the person used to get healed. Now this story spreaded, and some professional doctors came to know about this, that there is a person who is doing surgery but he is not trained for it, and he is doing some complicated surgery using some herbs, putting on some clothes, not taking care of the hygiene and all that. So they thought, yeah, he is doing a good job, he is helping people, let us train him. They called him to a training center. He told, you are doing a good job but you are doing a lot of mistakes, so we want you to train so that you don't make those mistakes. Okay, so today we are going to teach you anatomy. We are going to teach you that where are the nerves, where are the muscles, if this nerves cut, then what will happen to that person. I'll teach you everything, what hygiene and things you should take care of. They taught him everything. Then the next time he went for the surgery, oh my God, if I make a cut here, then he may die. That he didn't knew earlier. Okay, but none of them died. Okay. And now oh my God, I am using this knife, it is not sterilized, I should take care. What if there are some germs and this guy dies? So sometimes, you know, more awareness also brings in more fear. इसलिए जो Instagram ज्ञान है, जो WhatsApp ज्ञान है, जो हर थोड़ी देर में बता देता है कि कैसे B12 कम हो गया, विटामिन D कम हो गया, आपकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो सकती है, this awareness is very serious. It's really affecting our lives. अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो गई, हम खाना थोड़ा कम मतलब जिस तरीके से हम खाना खाते हैं ना, हम लोग बहुत सोच के खाना खाते हैं. ये खा रहे हैं, मैम बोल रही है मैंने स्वीट्स खा लिया. द ओनली थिंग इज़ हमने एफर्ट्स करने, यानी फिजिकल एफर्ट्स हमारे कम हो गए हैं. एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज़ ओके. तो मैं इस पूरे कंक्लूजन पे आया कि इफ़ यू वांट टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, just rewind your life 30 years back, just before the era television and mobile came into life. Before that, you see what your ancestors and your grandparents and parents used to do 30 years back. Their life was completely healthy. There was no hypertension, there was no diabetes, there was no generally, you know, some lifestyle diseases were not there, but they were eating too many sweets, they were enjoying everything. हमारे यहाँ पे एक कचौरी बनती है विच इज़ वेरी स्पाइसी. इफ़ यू ईट वन यू विल हैव अ बैड स्टमक. पीपल यूज टू हैव 10 or 12 एट अ टाइम.
until unless they're completely full. There is a food called dal bati. So bati is full of ghee, lot of ghee inside. अगर आज किसी को बोल देंगे हेल्दी आदमी को, और नहीं ये तो मैं खा नहीं सकता, इट्स लाइक दैट. मतलब द काइंड ऑफ फूड दे यूज टू इट, बट एट द सेम टाइम दे यूज टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. So we have just missed the hard work, except that, and the purity of food. But our ancestors had a very good wisdom of how to live life, rather than having all that wisdom coming from the Instagram and YouTubes or WhatsApp universities. That too much of awareness also brings fear. Now I'm talking about fear. You know, fear is very good. It is a protective mechanism, and that's why a child when born is born with a fear, some other fear. ओके आपको याद होगा हमारे यहाँ तो ये एक रिवाज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नीचे एक नाइफ या कुछ ऐसा रख देते हैं. वी बिलीव लॉट ऑफ थिंग्स, अदरवाइज वो बच्चा बार बार जग के रोने लग जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पर. जो भी एक्सपीरियंस आई डोंट नो. So fear the child is born with. It is a protective mechanism, because if you are not afraid of height, sometime you will jump or you become a stuntman. If you are not afraid about water, then you will start crossing the English Channel, or you will just go for swimming for long distances. तो जिन लोगों के अंदर fear factor कम होता है, they do all those kind of activities, jumping from the aircraft and doing a stunt, or jumping from one mountain to another on a bike, or you know, the kind of stunts we never imagine in our life. So that is a protective mechanism. But when any of these fears cross a limit, that it starts affecting your life in a negative manner. Say for example, मीठा खाने का डर. For example, कि हर किसी ने बोल दिया अगर मीठा खाओगे तो मोटे हो जाओगे. This is according to meta model, this is a cause and effect relationship which we have created. Now every time we eat a मीठा, we think अरे अब तो मैं मोटा हो जाऊंगा. Now what mind is manifesting कि मीठा खाना है मतलब मोटा होना है. Body start reflecting the same in your body. You say yes, he was saying the right thing. आप अगर उसकी जगह पे अपने परसेप्शन को और अपने लैंग्वेज को चेंज कर दे, से एवरी टाइम आई ईट अ स्वीट आई विल बिकम मोर फिट एंड आई एम मोर थिन, you will become the same. Why the people are not getting in good shape in gym? They are doing all the hard work, because every time they go in front of the mirror and they say nothing has changed. In spite of doing so much of hard work, nothing has changed. My weight is still the same. Mind understand, yeah, it is the same, right? You are saying the same thing. So your communication with yourself along with your efforts make a lot of difference. Correct? Fear. You know, देर आर फ्यू, कल कोई मुझे आई डोंट नो द नेम हु सेड दैट मेरी लाइफ में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एंड दे आर नॉट, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फोबियाज. हु सेड इट? पता नहीं कौन बोल रहे थे. सो आई एग्री, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी शुड हैव अ फोबिया. It is not essential also, and it is very good that you don't have a phobia or a fear, but I am telling you that you are suffering from hundreds of fears which are unknown. Because of that, you are not taking many of the steps. Okay, you want to grow your business, but you have a fear of saying no by someone. अब मैंने बोला तो वो ना बोल देगा, इसलिए मैंने कभी बोला ही नहीं. This is also fear. Fear, I want to expand my business and I don't want somebody to interfere in my business, and I cannot say no to that person because वो बुरा मान जाएगा. ठीक है? And that's why I'm just going on and on and on with the same pain. Isn't it a fear? It is a fear. Fear of failures. अगर मैंने ये कोशिश की तो ये जो पैसा है ये भी डूब जाएगा. Fear of failures. मतलब ये तो टिपिकल वर्ड्स हैं जिनके fear के नाम हमें पता है. पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो मगर नहीं कर रहे हो, उसके पीछे एक छुपा हुआ फियर है. आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. व्हाट इज़ दैट फियर इज स्टॉपिंग मी नॉट टू टेक द एक्शन. मतलब इट डजंट अलाउ यू टू टेक एन एक्शन. अगर मैंने आज ये नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो मैंने अपने दिमाग को ये सिखा दिया. ये मेडिसिन्स के लिए, अगर मैंने आज मेडिसिन नहीं ली तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरा सर दर्द होने लग जाएगा. अगर मैंने शाम की चाय नहीं पी तो मेरा सर दर्द होने लग जाएगा.
ये टिपिकल बिहेवियरल पैटर्न्स वी क्रिएट थ्रू आवर कम्युनिकेशन। और ये मिल्टन मॉडल जो हमने अभी अभी सीखा, नाउ हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ, योर लाइफ, ये हिप्नोटिक लैंग्वेज ये सिर्फ दूसरों पे काम नहीं करती, अपने आप पर भी काम करती है। अगर आप अपने आप को भी हैक करते हो, अपने आप को भी ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हो, इट रियली डज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू। तो फियर्स इज़ समथिंग विच वी नीड टू आइडेंटिफाई बिकॉज इट इज़ लाइक इट लिमिट्स योर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा लिमिट करता है। जैसे मेजर फियर्स तो बहुत सारे हैं जो मैं आपके साथ बात करूंगा, और जब यही फियर इतना एक्सटेंसिव और इतना इंटेंस हो जाता है दैट somebody it is difficult to bear. Say for example, somebody is not going in dark because the person has a fear of darkness. एक व्यक्ति, उसको 5वें माले पे ट्रेनिंग अटेंड करनी है पर वो लिफ्ट में नहीं जा सकता, तो बेचारा 5 माले सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, किसी से कह भी नहीं रहा कि मुझे डर लगता है, बाकी लोग जज करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि there was a female who called me from Mumbai. She said, now I'm 35 plus and I'm an IT professional. I got so many opportunities to go US, UK, Australia. There were always opportunities coming to me, but I never accepted. The moment they said you have to go to US, I said I won't go. I can change the job, but I won't go. You know what was the fear behind it? She has to fly. She has to go in an aircraft, and she was so phobic about aircraft, sitting in an aircraft, that she denied all the opportunities. But you know what happened? She never thought about कि क्या मैं अपने इस fear को ख़त्म कर सकती हूँ। अगर मान लो ये एयरक्राफ्ट में फ्लाई करने की fear मेरे अंदर ख़त्म हो जाए तो I can take up all the opportunities. But she never thought this way. Okay, ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? Because probably she didn't had any idea that this can be changed. हम हमारे व्यवहार को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है, हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रहने वाले हैं, हम बदल नहीं सकते, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसके पीछे एक कारण और भी है, ठीक है, जो शायद NLP के सब्जेक्ट के बाहर का है, बट आई विल स्टिल डिस्कस जस्ट टू there is a concept called law of attraction. You must have heard about it. The Secret book आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है? अभी सर ने बोला, मेंशन किया, आप पढ़िएगा बुक को। वो बुक ये कहती है, और वो बुक कुछ अलग नहीं कहती, वो बुक वही कहती है जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारा अध्यात्म कहता है, बिल्कुल वही, बस फ़र्क चेंज हो गया। हमने उस जगह पे गॉड को हटा के उस जगह पे यूनिवर्स या वर्ड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम पहले बोलते थे भगवान के पास जाओ, हाथ जोड़ो या नमाज़ पढ़ो या प्रेयर करो, कैंडल जलाओ, फिर भगवान को बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें देगा। हम ऐसा बोलते थे इन आवर कम्युनिकेशन। अब उस जगह पे गॉड, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल हु आर एथिस्ट, दे डोंट बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड और एनी स्पिरिचुअल थिंग्स, दे ऑब्जेक्ट कि आप गॉड वॉड मत बोलो, हम नहीं मानते हैं भगवान होता है। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, दे रिमूव द वर्ड गॉड एंड दे इंसर्टेड द वर्ड यूनिवर्स, एंड नाउ एवरीबडी वाज या यूनिवर्स कैन गिव मी एवरीथिंग। मतलब it's just the change of word and everybody is very happy now. There is no new concept of law of attraction. It is the same concept that if you believe and if you ask for, you'll get it. Simple. तो जब मैं law of attraction को पढ़ रहा था, I was also very enthusiastic, very happy about it. मैंने बोला हाँ है तो बहुत मज़ेदार concept. I used it in my life. I really worked on it, and I found that this is working. It's really working. But then I came to another problem, which was why I asked for this only? Why this particular thing only? Why not anything else? Why I am thinking what I am thinking right now? Why not anything else? Why I want to become, I want to earn 5 crore only? Why not 10 crore? Why only this thought is coming to my mind, okay, you should earn 5 crore. Why not 10 crore? Why not 100 crore? Why this thought is not coming to my mind that in the next 1 year I will be doing 25 NLP workshop, one in Australia, one in Canada? Why not? Why this thought is not coming into my mind? This is another problem. So only the thought that is supposed to come into your mind at a particular this is out of your control. What you will think is out of your control. Okay, what you will think, you will believe, you will want,
डेफिनेटली यू विल गेट इट, बट वॉट यू विल थिंक यू कैन नॉट कंट्रोल. आप समझ गए मेरी बात को? इट्स हाफ ट्रू. आपको जो विचार दिया जाएगा उसी को आप सोचोगे, वो विचार आपके मन से नहीं आएगा. ये भी एक, और इसके आगे की जो साइंस है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो शायद किसी और वर्कशॉप में हम लोग डिस्कस करेंगे. इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन इवन NLP, that how the thoughts are being they are coming to our mind and what we do about it. Okay, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि that ये बिल्कुल सही है कि आप जो भी सोचोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि then you start taking an action. बट उसको उस दिन हील होना था, इसलिए उसके दिमाग में ये आइडिया आया that I should find out someone who can help me to get rid of flying in an aircraft. Why not 10 years back? Why he didn't meet me 20 years back? जिस दिन 20 years back अगर ये मेरे को मिल जाते तो अभी his life would have been different. Why? Because जो प्रॉब्लम इनकी शुरू हुई थी ना, वो प्रॉब्लम तो फर्स्ट डे में ही हैंडल हो जाती. वो तो फर्स्ट डे में वो प्रॉब्लम ही नहीं थी एक्चुअल में. शायद हेलो वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि उसको बहुत समय तक अनएड्रेस छोड़ दिया गया, इट बिकेम डिफ़िकल्ट. तो इसलिए आपको जब हील होना है, यू विल गेट अ पर्सन, यू विल गेट अ हीलर, यू विल गेट अ डॉक्टर, यू विल गेट अ पर्सन हु कैन हेल्प यू, हु कैन एडवाइज यू, कैन गिव यू अ गुड एडवाइस टू गो टू अ सर्टेन पर्सन एंड गेट हील्ड. दैट्स द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू गेट हील्ड. एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट फियर्स एंड फोबियाज. यहाँ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैं आपको कुछ पहले एग्जाम्पल्स शेयर करता हूँ कि फोबिया, सब फियर्स को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे को हमारे सारे फियर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. मैंने आपको शुरू फर्स्ट डे में यही बात बोली थी, NLP इज़ नॉट अ वर्कशॉप जो आप यहाँ से सीखेंगे, 2-1 जनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, घर जाएंगे और बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखा के मैंने NLP कर लिया. दिस इज़ नॉट NLP. NLP is a daily task. You have to identify cockroaches in your life every day and you have to hit every day. This is a regular task of self-improvement. Now you have got a toolkit. You know that this can be addressed. You can do it yourself. You can do it then and there itself and you can keep improving every day. जिस दिन आप अपने दिमाग के अंदर से या अपने शरीर बॉडी अपनी लाइफ में से जो वजन कैरी करके आप चल रहे हो ना, वो धीरे धीरे ड्रॉप करते जाओगे, आप हल्के होते जाओगे एंड यू फ्लाई हाई एंड फास्टर. तो यहाँ पर एक केस आया था, दैट गाय हैड अ हाइट फोबिया. वी वर प्रैक्टिसिंग हियर इन दिस अदर हॉल एंड दैट आई थिंक हिज नेम वॉज जय. He had a height phobia. We didn't know how intense it was. We told him and we told some of the people to go along with him. मैंने पूछा कितना डर लगता है, बोले कि अगर मैं यहाँ से बालकनी से भी बाहर नहीं देख सकता हूँ. तो हमने उनको बोला कि आप इनको बालकनी तक लेके जाओ, और उन्होंने बालकनी से बाहर देखा एंड प्यूक्ड immediately. He was not able to handle that fear. He came back in thereafter half an hour के बाद, ये नेपाल की कहानियाँ बता रहा हूँ मैं आपको. हाफ एन आवर के बाद वो ही वॉज परफेक्ट. ही वेंट टू इवन द टेरेस, वहाँ से उन्होंने सब कुछ पूरी दुनिया देखी, होटल्स देखे एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. पूरी ज़िंदगी वो शायद इस हाइट फोबिया के साथ जीते. देयर वॉज वन लेडी, यू रिमेंबर हु इज़ दैट? सृजना? नो नॉट दैट. सृजना नहीं, दैट फीमेल हैड सीजर्स. You remember? Anybody was there in the first workshop? Srijna Shrestha. She had serious seizures, and seizures इतने frequent थे. She was taking medication for the last 15 years. She even got an attack of that seizure within the program on the 3rd day or the 2nd day, and she almost was on rest for another 1 day. सीज़र में क्या है, पूरी बॉडी ऐसे स्टिफ हो जाती है, अटक जाती है ना. तो दैट वाज द सिचुएशन. दैट वाज हैपनिंग फॉर लास्ट 15 years कंटिन्यूसली. शी वाज टेकिंग ऑल न्यूरो मेडिसिन्स, बट स्टिल 1 महीने में 5-6 बार वो सीजर्स होते थे उसको, कहीं पे भी हो सकते थे. व्हेन वी वेंट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, केम टू नो दैट she was in 10th or 11th standard and she was working in a biology lab. Somebody dropped a स्पेसिमेन स्नेक होता है ना, वो जो बॉटल्स में उसको करते हैं,
वो लाके एकदम पास में किसी ने एकदम बाई शॉक ऐसे पास में रख दिया डराने के लिए, एंड शी हैड अ शॉक, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड शी हैड अ सीजर. आफ्टर हीलिंग दैट शी नेवर हैड अ सीजर आफ्टर. उसके अलावा प्रॉब्लम्स थी बट सीजर नहीं हुआ, वो अटैक बार बार नहीं आया. Then I'll give you an example of a snake phobia. There was a lady in Mumbai. She had a snake phobia to an extent that she always had feeling कि मैं जब भी बाथरूम में जाऊंगी ना कहीं कोई स्नोप कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाएगा, पतला स्नेक आएगा, मोटा आएगा. तो उनको हमेशा यही डर लगता था. तो शी वॉज वेरी मच स्केयर्ड टू एंटर हर बाथरूम इवन. और who? You have it still? Now. It was cured. So उनको ऐसा लगता था. और उसके बाद नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. उनका कहाँ से शुरुआत हुआ कि उनके बिल्डिंग के बगल में एक और नई बिल्डिंग बन रही थी, तो खड्डा खोदा गया तो उसमें से बहुत सारे सांप एक साथ निकले, एंड शी सॉ दैट. सो यू डोंट नो व्हाट इमेज इज़ गोइंग टू इफेक्ट टू योर हेल्थ. देयर इज़ वन मोर फीमेल, I think it was in Delhi workshop. She had a snake fear and that was too intense. Intense इतना था कि during the healing I cannot even say the word snake. Even if when I say the word snake, she will say, "Oh, please don't say this word." She used to shiver. I said, then what should I say? It's a snake. I will say snake. No, आप उसको वो बोलो, वो आया था कमरे में, वो मैंने देखा था. तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही बोलता हूँ. तो देन वी स्टार्टेड रिस्पेक्टफुली, वो हमने पूरी हीलिंग वो बोल के की. अच्छा, अब आपने वो देखा, फिर वो आपके पास आया, एंड दिस इज़ हाउ वी डिड द हीलिंग. मतलब इतना स्केरी था. और वो कहाँ से आया पता है? वर्ड्स से. जब वो छोटी थी ना तो उनकी मम्मी हमेशा उनको बोलती थी खाना नहीं खाएगी तो तेरे पेट में सांप आ जाएगा. उसके अलावा एक घटना और घटी, दैट वाज अनदर थिंग वेयर उनके बच्चे के साथ भी कुछ एक दो चीज़ें हुई. बट मतलब कभी कभी कोई वर्ड्स भी आपको कितना सीरियसली इफेक्ट करते हैं. एंड फाइनली शी वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ इट. सो ये तो हो गए फोबियाज़ की बात. फोबियाज़ के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टूल विच वी आर गोइंग टू जस्ट लर्न. स्पेसिफिकली फॉर फोबियाज़, फॉर इंटेंस बैड मेमोरीज, समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू. एक सिंपल सा रूल है, इफ देर इज़ अ थॉट और इंट्रूटिव थॉट्स विच इज़ बॉदरिंग यू अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, विच यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट एंड इट इज़ इफेक्टिंग योर पीस ऑफ माइंड, सर्टेनली इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. कोई भी ऐसा थॉट हो जो बार बार आ रहा है, आप नहीं चाहते तो भी आ रहा है, तो ऐसा है कि जो भी फोबिक थॉट्स होते हैं ना वो रिपीटेडली आते हैं, आप चाहो या मत चाहो. ये इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल. जो बैड मेमोरीज होती हैं वो भी आप चाहो या मत चाहो वो बार रिपीटेडली आते हैं. मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था ना कि कमरे के अंदर मरा हुआ चूहा पड़ा है तो बदबू मारेगा ही मारेगा. सिमिलरली, और फिर रात को दर्द होता है, मतलब पेन होता है, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ चिकन्स, फियर ऑफ क्राउड्स, पब्लिक स्पेसेस, नीडल्स, राइडिंग इन अ कार, फियर ऑफ मैन. एक लेडी का हमारे सामने मिलना हुआ, उनको कुछ सीरियस न्यूरो प्रॉब्लम थी एंड शी वॉज रिकमेंडेड फॉर MRI, बट शी कैन नॉट इमेजिन गोइंग इन टू एन MRI मशीन बिकॉज शी वॉज क्लॉस्ट्रोफोबिक. वो तो उसको लगता था कि मेरी जान निकल जाएगी अगर मैं MRI मशीन में गई तो. फियर ऑफ एंजाइना, फियर ऑफ फ्लावर्स, फियर ऑफ बीइंग टच्ड, यस, फियर ऑफ होल्स, फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी, फियर ऑफ नंबर्स. अब आप कई बार हम बोलते हैं ना ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ये नंबर्स, इसको हम मैथ्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर मैथ्स नहीं सीख रहा है. आपको पता हो सकता है कि ना पता हो, मतलब पता नहीं भी हो कि उसको कोई फियर ऑफ डिसऑर्डर्स, फियर ऑफ डिजीज़, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग अलोन, बैक्टीरिया, ग्रेविटी, फियर ऑफ स्टेयर्स, फियर ऑफ amphibians, फियर ऑफ पिन्स एंड नीडल्स, बुक्स, प्लांट्स, थंडर एंड लाइटनिंग डिसऑर्डर्स. ये बहुत सारे फियर्स आइडेंटिफाई हुए हैं. यू कैन गो थ्रू द लिस्ट ऑफ फियर ऑफ अगलीनेस, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, मिरर्स, स्नो, कलर्स, क्लॉक्स, कन्फाइंड प्लेसेस, क्लाउन्स, कंप्यूटर्स, डॉग्स. ये छोटी सी लिस्ट है, अभी ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है अप टू Z.
So there are so many different types of fears. Some we are aware, some we are not aware about. तो हमें लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इससे डरता हूँ तो इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा. बट दैट लिमिटेशन. और ये तो हो गए फोबियाज़. बट इसके बाद हमारे को देखना है कि कई सारे छोटे छोटे फियर्स हैं. तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास, किसी के पास कुछ बड़ा करने का है क्या? कुछ गोल, कोई विचार, कोई थॉट कि भाई मुझे ये करना है, या कुछ है किसी के पास कुछ चैलेंजिंग? बाकी तो सब ठीक है, स्कूल चल जाएंगे, बच्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, सब हो जाएगा, ये सब बड़ी चीज़ नहीं है. कुछ अलग हट के सोचा हुआ है किसी ने, जिसको हेल्प करके, जिसको असिस्ट करके हम खुश हो पाएँ कि ये ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा और हो गया? है किसी के पास ऐसा चैलेंजिंग? नॉट नेसेसरी विद द करियर, नॉट नेसेसरी फॉर मनी, इट कैन बी एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ द लाइफ. देखो हम लोग कितना रिजर्व होके जीते ना. कुछ चैलेंजिंग ये हम आप दोनों को मैं करवा दूंगा कल से पहले. और इसके अलावा अच्छा, फियर्स फोबियास के बारे में बता दो. चलो, किसी को कुछ है क्या? आपको है? यू गोइंग टू माई सब्जेक्ट. हाँ, एनीबडी एल्स? यस. प्लेन, जस्ट फ्लाइंग, मतलब गोइंग इन टू द प्लेन. जा पाते हो, नहीं जा पाते? जाते हो पर डर लगता है. हाँ, लॉन्ग लिस्ट. तो आ जाओ ना आप. यू आर माई सब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. एक ही रूट कॉज हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल रूट कॉजेज. So she is a very good subject. Let's see how many problems can we address in a single session. Okay, and किसी को कोई गोल याद नहीं आया अपना? हाँ, you have a goal, ma'am. You said, what is your goal? It is a very challenging also. नहीं, वो चैलेंजिंग है नहीं है, डिसाइड करेंगे बाद में. आप तो गोल बताओ. How many goals? 1. I have 3 major goals. The first priority is to make my school building right now. Okay. So you want to make your school building, right? Why didn't you make it till now? Because it was not necessary. Why? We were inventing and there was no problem. Okay. It was easy for us. What is the problem now? It may not Why not your own building? You are not your own building. now. Not your own building. Own building means land should be yours and the building should be yours. Huh? Definitely we want. You will, I know that. Why not now? I am asking that question. Now we are not able to spend that much money. So ये क्या है? This is also a fear. This fear is stopping her to procure land. Honestly, there is a fear which is not allowing you to take a decision to procure land. You think that you will have certain challenges, but the moment you drop this fear and start thinking in the direction कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि लैंड भी मेरी हो और बिल्डिंग भी मेरी हो, you will find a way. So my point is, why did I ask this question is, we tend to change our decisions because we are somehow unconsciously having a fear of something, unknown fear, and that is why we think this will not happen, so I should do this, so I take a different way. ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हो गलत है, We need to reach. that's not what I'm trying to say, but है उसके पीछे छुपा हुआ एक fear ही. और हाँ, That one I have to remove. देखिए, हाँ बिल्कुल रिमूव करना चाहिए. मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको ये तो पता ही था कि आपकी बिल्डिंग रेंटेड है,
तो किसी दिन तो आपको खाली करनी थी. Why didn't you take a decision to purchase or own a land 10 years back, 5 years back, That time when you did the first NLP after that? that time also we didn't have money to buy that space. देखो वो एक पुरानी कहावत है ना, 100 मन तेल होगा 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी. तो पैसे तब भी नहीं थे और पैसे अब भी नहीं है, पर पहले खरीदी नहीं, अब खरीद रहे हो, अब बना रहे हो. बात पैसे की थी नहीं, बात ये थी कि आपके पास वो क्लैरिटी नहीं थी गोल की. आपके पीछे मतलब एक ज़बरदस्त फोबियाज, एंड द टूल नेम इज़ फास्ट फोबिया क्योर. इट इज़ मेंशन इन योर मैनुअल, फास्ट फोबिया क्योर. फास्ट फोबिया क्योर कितना बड़ा टूल है, आप सोच सकते हो कि दुनिया में कोई साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं बनी हुई जो आपको डर से बचा सके. कोई मेडिसिन नहीं है फियर्स एंड फोबियाज की, ठीक है. नो साइकेट्रिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू. ओनली NLP प्रैक्टिशनर्स, ओनली साइकोथेरेपिस्ट कैन हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस. अदरवाइज द पर्सन हैज़ टू लिव विद दिस फियर फॉर होल लाइफ. अब आप आ जाते हैं. शी हैज़ अ फोबिया ऑफ वाटर. लेट्स माइक ले लीजिए. लेट्स हियर फ्रॉम हर हाउ लॉन्ग शी हैज़ फियर ऑफ वाटर. from my childhood. वॉट एज, मतलब पहली बार आपको कब से पता चला था कि आपको वाटर का फियर है? जब से उस हमारा है. अच्छा, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट गोइंग बैक टू योर चाइल्ड. मेरे को दे दीजिए, आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी. थिंक अबाउट गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड, द फर्स्ट टाइम यू आइडेंटिफाइड दैट यू हैव अ वाटर फोबिया. गो बैक इन द रिवर्स ऑर्डर एंड टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस जब आपको ये पता चला कि आपको वाटर फोबिया है, हाइड्रोफोबिया है. What was happening? The first incidents when you came to know about this. I don't know, sir. पहली बार जब आपको पता चला कि आपको पानी से डर लग रहा है, वो क्या हुआ था? अंदर से ही हो रहा है सर. अंदर से नहीं, पहली बार आपको कब पता चला? What was the first incidence that you came to know that you have water phobia? यानी कि पानी में आपको जाने से रुकना पड़ा, आप डर गए, आप नहीं अंदर जा पाए, वो कब हुआ पहली बार? What was the first incidence in your life? जब मैं अपने मामा घर में जा रही थी ना सर, वहाँ पे थोड़ा सा कुलो ऐसा होता है. जब मैं वहाँ अपना पाँव रखती हूँ ना, वहाँ पे वो कहाँ पर? वो कुलो बोलता है, वो छोटा सा सर, वो खेत में सर. खेत में, हाँ ठीक है. और जब मैं हाँ वो जो छोटा सा कैरी जो होता है, हाँ उसमें. जब मैं वहाँ पाँव रखती हूँ ना, वो रूट्स आके ऐसा रूट्स, Plants. ग्रास का रूट्स या हाँ. ग्रास का रूट्स. उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि देयर स्नेक्स, वाटर स्नेक. okay. So they roots and water snakes. तो आप कहाँ कहाँ नहीं जा पाते, मतलब किस किस जगह पर? आप स्विमिंग पूल में जा सकते हो, रिवर, समुद्र, कोई सी बीच? नहीं नहीं, कहीं भी नहीं सर. आप बताओ. शी विल नॉट. क्रॉलिंग ऐसा होता है ना सर, तो कहाँ पर? कहीं भी अपने आप फील हो जाता है. तो जब वो देखते हो ना, अपने आप वो हो जाता ओके, है. थिंक अबाउट द फर्स्ट टाइम आपके मन में ये विचार आया कि कोई क्रॉलिंग हो रही है, मतलब कोई इंसेक्ट या स्नेक हो सकता है. When was the first time you experienced? लोगों ने बोलने से भी, लोगों के बोलने से. क्या बोला था लोगों ने? वैसे सांप का वो टूटने से, सांप के काटने से हम मर जाएंगे ऐसे बोला शायद. कब बोला था? जब मैं maybe 9 years old. 9 years old. किसने बोला था? किसने बताया था ये बात आपको? There are lots of people, sir.
किस कौन कौन लोग हैं, एक नाम तो बताओ। I can't identify, sir. यू कांट आइडेंटिफाई। पर ये पहली बार किसने बोला था आपसे? यो जमात से ही वो आवाज़ आ रहा था सर। हाँ, सब लोग का आवाज़ एक ही साथ आ रहा था सर। बहुत सारे लोगों का आवाज़ एक साथ आ रहा था। कहाँ पर? वेयर वर यू? जगह कौन सी थी ये? वो एक ग्राउंड है सर। ग्राउंड है, हाँ। आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा क्लोजली अब। जी बोले, कौन सा ग्राउंड है ये? उस ग्राउंड में प्लीज ऑब्जर्व। यस यस, टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। ओके ओके, आप समझ गए? अब मैंने इनको एसोसिएटेड मोड में बोल दिया था। अब जब ट्रेन चल रहा होता है ना सर, हाँ हाँ, आई डोंट नो, मैं गिर जाऊंगी, स्पेशली वॉशरूम सर, रेस्टरूम। वॉशरूम जाने में। यस सर। क्या वॉशरूम जाने में गिर जाओगे ऐसा किसने बताया आपको? किसी ने भी नहीं सर। तो आपको डर क्यों लगा? आई डोंट नो सर। पहली बार कब लगा? मे बी 13-14 ईयर्स। 13 ईयर्स की एज में? नहीं, 13-14 ईयर्स बिफोर। बिफोर, ओके। व्हाट हैपेंड इन दैट? आप कहाँ पे थे? कौन सी ट्रेन थी? गोरखपुर से दिल्ली से। गोरखपुर सिटी से। सो व्हाट हैपेंड? कैन यू टेल मी द इंसिडेंट्स? नो सर, तो जब वो लीक चलता है ना सर, हाँ, वैसे इतने डर लगता है। हिलने लेकिन से। अभी तो एज के अकॉर्डिंग टू एज मर जाऊंगी, लेकिन करके देखूंगी। पर मरना क्यों है हर चीज़ के लिए? बिना मरे आप आराम से ट्रेन में ट्रैवल करोगे। अभी तो करती हूँ सर, करते हो। वही तो पर कुछ टॉयलेट भी के हो। पास जाने में डर लगता है? कुछ भी हो जाऊंगी, कुछ नहीं, भी हो नहीं, जाऊंगी। डर लगता है जाना कि तो नहीं? पड़ेगा ना सर, इसलिए। नहीं, बिना डर के भी जा सकोगे ना आप। लेकिन डर तो बहुत लगता है इस ठीक है। इस डर का शुरुआत कहाँ से हुई? फर्स्ट टाइम 13-14 ईयर्स पहले गोरखपुर वाली जो ट्रेन थी उसमें आप गए थे, तो वहाँ पर आप टॉयलेट की तरफ गए होगे तो वो ट्रेन तेज चल रही थी, डर उससे डर लग रहा था। जब लीक, मतलब सर वो इस मतलब अपार्टमेंट जब हम पार करते हैं ना सर, नेक्स्ट अपार्टमेंट, ब्रिज पार करते हैं, हाँ ठीक है। उस समय वो जब वो चलता है ना सर, हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे होते हाँ 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 हाँ, उससे डर लगा आपको? ठीक है। ऐसे कोई इंसिडेंट तो नहीं है सर। हाँ? कोई इंसिडेंट तो नहीं है सर, फिर Okay. भी डर लगता है। बेड से भी डर लगता है आपको? बेड से तो नहीं सर, बेड में जब बेड में नीचे जो स्पेस है उससे स्पेस क्या आएगा वहाँ से? आई डोंट नो सर, क्लोज योर आइज, आई डोंट नो सर। क्लोज योर आइज। नहीं, माइक हाथ में रख लीजिए, आप फिर भी आंखें बंद कर पाओगे। आंखें बंद कर लीजिए। तो जब आप बेड के बारे में सोच रहे हैं, थिंक अबाउट अ बेड जो नीचे से हॉलो है, खाली है, और आप उसके ऊपर बैठे हो, जैसे अभी इस चेयर पे बैठे हो, ये नीचे से खाली है, ठीक है? थिंक अबाउट इट। व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू हैड दिस फियर? Is down. ओके, I don't know sir. टेल मी। नहीं? ओके। ये पेन का डर कहाँ से आ गया आपको? पेन? I don't know sir. ऐसे हाँ पेन तो होता है ना सर। हाँ अगर मुझे कोई मतलब मेरा बहुत सीजरिंग है,
सर्जरीज सर्जरीज ठीक है. कौन सी सर्जरी से आपको ये डर लगना शुरू हुआ पेन का? सर जब इंजेक्शन लगाती हूँ ना वही से उस समय भी डर लगता है. नहीं, पर ये पेन सर्जरी, ये पेन का डर कब से लगना शुरू हुआ आपको लास्ट टाइम? आई डोंट रिमेम्बर, आई डिडंट रिमेम्बर, आई हैड नो. सर्जरी के बाद? सर्जरी में पेन हुआ था क्या? नहीं हुआ था सर. तो फिर कौन सा डर कहाँ से आया ये पेन का? आई डोंट नो सर. यू डोंट नो. पहली बार कब पता चला? ओके. डॉग्स का डर कहाँ से शुरू हुआ आपका? डॉग्स का डर. I don't know sir, but when dog bites, मेरे एक आंटी को डॉग ने टोका था. कब? एज तो लगभग वैसे है सर. कितने साल पहले? I was 13-14 years sir. ओके. फिर क्या हुआ? आपने देखा था उनको? नहीं देखा, उसने इसे बोला ये वो इंजेक्शन 14 इंजेक्शन लगे थे. उन्होंने बताया, वो सुनकर आपको डर लग गया? सर. I have dog at my home but I didn't touch still now. और ये डार्क बाइक लिखा हुआ है आपने? I had already told sir that. हाँ? जब मैं स्कूटी चलाती हूँ ना सर. अच्छा अच्छा. पीछे कोई है? पीछे कोई कुछ नहीं, मुझे होता ना सर कैच कर लिया तो ऐसे डर लगता है. So there are so many fears. बहुत सारे fears हैं, बहुत सारे के कारण इनको नहीं मालूम है. अभी हम इनके सबसे पहले 2 और 3 fears ख़त्म करेंगे, उनको हम चेक करेंगे, है ना. जो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है उनको हम बाद में एड्रेस करेंगे. तो सबसे पहले हम इंसेक्ट और स्नेक्स के फियर पे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेंस है. क्लोज योर आइज. यू आर ऑलरेडी क्लोज योर आइज नाउ. इमेजिन मुझे 2 ऐसे, हाँ नहीं अभी आपको हाथ में रखना पड़ेगा माइक, क्योंकि एक्चुअली उनको सुनाई नहीं पड़ेगा ना, उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हो और हम क्या कर रहे हैं. है तो डेमोन्स्ट्रेशन ही ना. तो एक थोड़ी पुरानी बचपन की भी हो सकती है. बचपन की तो नहीं सर. हाँ. My daughter is in Australia. Daughter is on Australia. Okay. She came and surprised me. क्या हुआ? She surprised me. Surprised you. She didn't tell me I am coming. तो आपको अच्छा लगा वो? हाँ. बहुत. जब सर मैं NLP के लिए आने वाली थी. उससे पहले? नहीं जब राज्य मैम को मैं आ रही हूँ. हाँ. मैम आई एम ऑल्सो कमिंग टू. ओके. उस समय इतनी खुशी हुई आपको? सर आफ्टर लॉन्ग टाइम. अच्छा, जस्ट थिंक अबाउट दैट पिक्चर. इससे भी और कुछ अच्छा हो तो सोचिए. इट्स ओके सर. इट्स ओके. आई एम हैप्पी. हाँ, यू आर हैप्पी. तो वो वाली बात याद कीजिए जब आपने कंफर्म किया कि आप NLP के लिए आ रहे हो. डू यू सी अ पिक्चर? क्या हो रहा है उसमें? मैं आई एम विथ माई फ्रेंड सरस्वती मैम. ओके. पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सरस्वती मैम एंड आई एम. सरस्वती मैम एंड आप. सरस्वती मैम में इनको ऐसा लगता है कि वो जब रूट्स टच करेंगी तो उसमें स्नेक भी हो सकता है. और स्नेक फोबिया में ये एक जगह के बारे में बता रही थी. एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसको बात करने से पहले इमेजिन नाउ वी आर गोइंग टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ फास्टफोबिया क्योर, दैट इज डबल डिसएसोसिएशन. ध्यान से देखिएगा. थिंक अबाउट
standing at the entry or exit gate of a cinema hall? आप देख पा रहे हो अपने आप को सिनेमा हॉल में एंट्री की गेट पे या एग्जिट गेट पे अपने आप को देख पा रहे हो? नीतू मैम देख पा रहे हो क्या आप? बोलिए. आर यू एबल टू सी योर सेल्फ ऑन द एंट्री गेट ऑफ अ सिनेमा हॉल? इमेजिन दैट यू आर देयर. देख पाए? आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ है? पर्पल सर. पर्पल कलर का. अभी वाला जो ड्रेस है उससे डिफरेंट है ना? यस और नो? यस सर. ओके, डिफरेंट है. तो आप वहाँ पर खड़े होके आप अपने आप को एक सीट पर बैठा हुआ देख रहे हो. कोई भी एक सीट हो सकती है. जब बैठ के देख पाओ तब मुझे बताइएगा. कैन यू सी योर सेल्फ सिटिंग ऑन वन ऑफ द सीट्स? क्या आप देख पा रहे हो? क्या हुआ? टेक अ डीप ब्रेथ. गहरी सांस लो. गहरी सांस लो. और आपने कभी सिनेमा में लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? धुरंधर. ठीक है, धुरंधर मूवी के अंदर जब आप सिनेमा हॉल में गए थे ना, उसी सीन को याद कीजिए. क्लोज योर आइज. अपने आप को एक पर्टिकुलर सीट पे बैठा हुआ देखिए. देख पा रहे हो? कौन सी सीट है कॉर्नर से? सीट नंबर 9 सर, लेकिन बैक. हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा पास करिए ना. सीट नंबर 9 है सर. सीट नंबर 9? नो सर, सीट नंबर 9 लेकिन सीट नंबर नहीं है, लेकिन कहाँ पर है? बैक टू द लास्ट रो. लास्ट रो सर. ओके, तो लास्ट रो में आप उस सीट पर बैठकर एक मूवी देख रहे हो. और ये मूवी आपकी लाइफ के बारे में है. ठीक है. इस मूवी में क्या होगा, सबसे पहले जब मैं 3 बोलूँगा ना, तब आप अपना NLP वर्कशॉप में जब आप सरस्वती मैम के साथ आए उस पिक्चर को देखोगे. ठीक है. जब मैं 2 बोलूँगा तो आप 2-3 पिक्चर्स देखोगे. एक तो वो जब आपने अच्छा पहले मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ. आपने बोला कि वो जो खेत के बीच में एक पानी निकलता है, उसमें अगर पैर रख दें तो उसमें रूट्स होती हैं, उसमें पानी का स्नेक भी हो सकता है. जब आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में देखते हो तो आपको फियर आ रहा होगा. कितना इंटेंसिटी का फियर है ये आउट ऑफ 10? बोलिए. ज़्यादा टाइम मत लीजिए, फटाफट बताइए. 10 आउट ऑफ 10. जब आप अपने आप को उस ग्राउंड में देख रहे हो, वो ग्राउंड जो आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया था, कितना फियर है ये? इंटेंस. आउट ऑफ 10? 10 सर. 10 है. ठीक है. तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इनकी दोनों पिक्चर्स आपको याद है. एक तो वो ग्राउंड जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे, मुझे याद नहीं, जिसमें बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी कि सांप के बारे में आप कुछ बता रहे थे. ठीक है. कलर या वाइट कलर से? फास्ट. वाइट सर. वाइट कलर. फटाफट कर दीजिए पेंट. हो गया. इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है स्नेक और इंसेक्ट्स वाली. जहाँ एक ग्राउंड था, वहाँ बहुत दूर से बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे. ये स्टोरी क्या है, ये बताइए मुझे. वहाँ पे बहुत से लोग हैं सर. बहुत सारे लोग हैं. ठीक है. वहाँ एक येलो कलर के स्नेक है. हाँ. 2 स्नेक है सर. 2 स्नेक हैं. अच्छा. वहाँ पे बहुत से एग्स भी है सर. हाँ. और वो लोग बोल रहे हैं. हाँ. ये तो किंग और क्वीन. किंग कोबरा है. हाँ. डिड यू सी द स्नेक्स? यस सर. यू सॉ द स्नेक्स? सर अभी देख रहे हो, लेकिन उस समय तो मालूम नहीं सर. उस समय मालूम नहीं. बाकी लोग बोल रहे हैं, बस वही सुनाई पड़ रहा है.
इसको देखकर आप क्या फील कर रहे हो? अभी सर हाँ, डर लग रहा है लिटिल बिट डर लग रहा है। वो जो आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सांप है करके, और सांप काटने से मर जाएंगे ऐसा बोला था ना? नहीं सर, उस समय तो नहीं बोला थे। ओके, ये जो पिक्चर है जो ग्राउंड का, ये पिक्चर देख के इसको भी वाइट पेंट कीजिए आप। कर दिया। तीसरा पिक्चर है ट्रेन का। ट्रेन की टॉयलेट के पास आप जाइए और वो ब्रिज के ऊपर से निकल रही है ट्रेन, और एकदम ट्रेन हिल रही है और आप बिल्कुल टॉयलेट के पास हैं। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? हाँ, इज इट ओके? यस। चलिए, बेड पे बैठे हो, नीचे खाली जगह है, नीचे ओपन एम्प्टी स्पेस है, कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो? लिटिल बिट डर लग रहा है। लिटिल बिट हैप्पी पिक्चर। एक पिक्चर इनकी डॉटर का सरप्राइज, वो भी हैप्पी पिक्चर है। और बीच में मैंने 3 पिक्चर्स लिया है, एक रिलेटेड टू वाटर, एक स्नेक और एक बेड। इन तीनों फियर्स को मैंने एक साथ लिया है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस। थर्ड जब मैं 3 बोलूँगा तो आप खुद को सरस्वती मैम के साथ देखेंगे। 3, फील हैप्पी, फील गुड अबाउट इट। 2, सी ऑल द 3 पिक्चर्स। वो क्यारी वाला पिक्चर, पेंटेड वाइट फटाफट। स्नेक, जहाँ पर एक ग्राउंड में 2 किंग कोबरा। अभी इसमें मैंने क्या किया मैम, अभी आप 3, 2, 1 आपको याद रहेगा? 3 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है? कैन यू रिपीट दिस प्रोसेस योर सेल्फ? ओके, तो 3 पे आपको खुद को सरस्वती मैम के साथ देखना है। 2 पे आपको 3 या 4 पिक्चर्स देखनी है, क्यारी वाली, वो ग्राउंड वाली, ट्रेन वाली और बेड में होल वाली। वो सारी पिक्चर्स देख के उन सबको वाइट करना है। और 1 पे आपको अपनी डॉटर को देखना है। ठीक है, आर यू रेडी? 3, 2, पेंट ऑल ऑफ देम वाइट, जिसमें ग्राउंड है, जिसमें क्यारी है, जिसमें ट्रेन का टॉयलेट है, जिसमें बेड है, होल है। सारी पिक्चर्स को पेंट कर दीजिए फटाफट। एंड 1, योर डॉटर। 3, अब आप ये प्रोसेस को ना एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करोगे योर सेल्फ। आई विल नॉट गिव यू एनी प्रॉम्प्ट, तब तक मैं टीम को, बाकी सब लोगों को समझा देता हूँ। अभी वी आर डूइंग इट इन अ डबल डिसोसिएटेड स्टेट। आपने देखा जब मैंने शुरू में इनको ग्राउंड देखने के लिए बोला था तो कितना डर गई थी। दैट वॉज एन इंटेंस फियर। तो हमने फिल्टर यूज़ किया सो दैट शी कैन एक्चुअली, अभी आप देख रहे हो डबल डिसोसिएटेड स्टेट में शी इज़ एबल टू हैंडल दैट पिक्चर ईजीली। अगर इसी चीज़ को मैं एसोसिएटेड स्टेट में डायरेक्ट दिखाऊंगा वो डर जाएंगी, इसलिए हमने फ़िल्टर यूज़ किया। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हमने वो सीखा था फर्स्ट डे में, एसोसिएटेड, डिसएसोसिएटेड एंड डबल डिसएसोसिएटेड। सो लेट्स काउंट फ्रॉम 1 to 10. You complete the process and tell me 1. 1. Okay. 3, 2, 1, 2 बस कंप्लीट। अभी लगेगा थोड़ा 10 मिनट तक। नहीं, फिर सीखोगे कैसे आप? मैं प्रोसेस पूरा फिर आपको आके ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस तो कंप्लीट करने देते हैं। कितना काउंटिंग हुआ? 3, 2 पे सभी पेपर पे फोटोग्राफ्स को वाइट करना है एंड जंप टू पिक्चर नंबर 1। यस, कितनी बार हुआ? 5 times. 5 more times, क्विकली करिए।
करिए, हाँ 5 टाइम्स और कीजिए. 3, 2, paint all of them white. 2, paint them all white. 1, 3, 2, paint them all white. 1, 3, 2, paint them all white and 1. Now can you see any of these picture? 2 वाली पिक्चर में से कोई पिक्चर आपको नज़र आ रही है? No. Take a deep breath. अभी हम स्टेज 3 में एंटर कर रहे हैं. स्टेज 3 इज़ नाउ टेस्टिंग हर ऑन द एसोसिएटेड स्टेट. मैम अब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, ये सब कुछ आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो. देयर इज़ नो स्क्रीन, देयर इज़ नो सिनेमा हॉल, यू आर एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ. सो लेट्स सी द पिक्चर नंबर 3. नाउ सी द पिक्चर नंबर 2, योर सेल्फ. थिंक अबाउट दैट पानी का क्यारी. डिड यू सी दैट? कोशिश कीजिए, और जब उसके बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक काम और करना है. वी आर गोइंग टू यूज़ सम ऑडियोज़. आपको कोई कॉमेडी मूवी देखी है आपने? उसका कोई डायलॉग याद है? याद है जिससे आपको हंसी आई थी कभी? कोई भी मूवी, या किसी के कोई जोक, या कोई इंसिडेंस जिसमें आपको बहुत हंसी आई थी? मेरे अपने फेयर से अपने आप हंसी आते हैं सर. अपने आप हंसी आती है, तो वो किस बात से आती है? जब फेयर के बारे में वो हम मतलब क्लास ले रहे थे ना सर. हाँ. उस समय अपने आप हंसी. चलिए, तो आप उस घटना को याद करके जब 2 वाली पिक्चर्स देखेंगे तो उस घटना को भी याद कीजिएगा साथ में. एंड जस्ट फील गुड, फील हैप्पी, फील लाइट. ओके, उसके साथ वो आवाज़ भी सुनिएगा जो भी सुनकर आपको कॉमेडी फील हो रहा था, अच्छा हंसने जैसा महसूस हो रहा था. ठीक है. 3, 2, पेंट दैम ऑल वाइट एंड 1. 3, 2, पेंट दैम ऑल वाइट. सी द पिक्चर. आपको हंसी भी आ रही थी. 1, 3, 2, paint them all white and enjoy the picture. 3, 2, paint them all white, enjoy the picture. And 1, 3, 2, enjoy the picture and 1. Now, do you see any of the pictures number 2? अब मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ. आपकी उम्र यानी आपका चाइल्डहुड में आपने एक खेत के बीच में क्यारी देखी थी जिसमें रूट्स थे, पानी गुजर रहा था, आपने उसमें पैर रख दिया है. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? नथिंग सर. नथिंग. यू आर फीलिंग नॉर्मल. एक बार फिर आप उस ग्राउंड में चले गए हो जहाँ पर स्नेक्स थे, किंग कोबरा था, लोग थे, सब चिल्ला रहे थे कि सांप काटने से मर जाएंगे. डू यू सी द पिक्चर नाउ? यस सर. हाउ आर यू फीलिंग when you see this? Nothing sir. Nothing. अब सच में स्नेक इस कमरे में है इस समय पर, आपके आसपास ही किंग कोबरा घूम रहा है. हाउ आर यू फीलिंग? क्या हुआ? क्या हुआ? Whether she is able to handle this or not. ऑल्दो मैं ये किसी को नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा पिक्चर्स देखो. मेरे कई बार इंस्टाग्राम फीड पे आ जाता है, शी कैन इवन टच नाउ. मेरे कई बार इंस्टाग्राम फीड पे बहुत सारे स्नेक्स आने लग जाते हैं, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, बिकॉज जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है. जहर को पिचकारी की तरह करीब 5 फुट तक सटीक निशाने पर थूक सकता है और अपने शिकारी को अंधा कर सकता है. जहर थूकने वाला. हाउ आर यू फीलिंग व्हेन यू सी दिस नाउ? जहर को पिचकारी की तरह करीब 5 फुट. सो नाउ शी हैज़ ओवरकम दैट फियर. आपने शुरू में देखा था जब वो ग्राउंड के बारे में बता रही थी तो उनकी शी वॉज नॉट एबल टू. उनको बोला कि मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए हैं, मुझे मेरे हाथ पैर जकड़ गए हैं, वो सब होने लग गया था. क्या अभी भी वैसी फीलिंग आ रही है आपको? नहीं. नाउ यू आर फीलिंग नॉर्मल. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट रिड ऑफ वाटर, इंसेक्ट, ट्रेन एंड बेड. आई डोंट नो, मे बी पेन और डार्कनेस भी ख़त्म हो जाए, बट सिंस वी लैक ऑफ टाइम वी वर नॉट एबल टू डू ऑल ऑफ देम. अगर आपको फिर भी वो डर लगता है तो किसी के साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए. इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आफ्टर द लंच आई विल एक्सप्लेन यू.
ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है दैट जिस चीज़ पर पहले थोड़ी देर पहले उनको शिवरिंग हो रही थी, हाथ पैर स्टिफ हो रहे थे, ठंड लग रही थी, मतलब एक अलग सी फीलिंग उनको हो रही थी, नाउ शी इज़ नॉट फीलिंग, शी इज़ लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड नाउ, एंड in the times to come in the future also she won't have any fear of snakes or insects or train or bed. She will be easily enjoying her travel in train, और उनको बेड पर भी बैठने में अब डर नहीं लगेगा. हो सकता है कि डार्कनेस वाला और जो बाइक पे बैठ के पीछे से कोई है वो डर भी खत्म हो गया हो, बिकॉज दे वर ऑल इंटरकनेक्टेड, दे वर क्वाइट सिमिलर इन नेचर. तो क्या होता है जब हम किसी एक फियर, ये आपका ही ना बहन, जब हम किसी एक फियर को एड्रेस नहीं करते ना तो स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है वो जनरलाइज होने लग जाता है, तो दूसरी चीज़ों से भी उसी तरीके के डर लगने लग जाते हैं. अभी जब हमने ये फियर हटाया है, पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि उनको बाइक पे और so fast phobia cure, the process is, first of all you should, as I took 3 or 4 phobias together, let us not, in the initial phase we will not do that. You do it for one at a time, any one fear at a time, not many fears at a time, right? But she had all the fears which are correlated, इसलिए ठीक है. तो you identify the fear. Now take that person into that situation. Say for example somebody is afraid of say for example she's afraid of insects and lizards and creepy insects. So for that reason she doesn't want to go to any jungle or any gardens also. Gardens also you go to it, jungles, okay, so she doesn't go there, okay. So you have to let's check that on her first. Okay, come here. Now if she is saying that I cannot go to jungle, that means let's check whether she is able to do it or not. Close your eyes and think about you going to a wet like kind of rainforest or a jungle where there is always humidity, moisture, all the trees are little slippery, there are roots visible on the floor, like kind of Amazon forest or something like that, and you have entered there. Just moving through that place, what are you feeling right now? Scared. So what is the picture that you see? Like it's very dark. Just see this. Yeah. Like? It's dark. Is dark. Are you able to see any insects? Yes, spiders. Spiders. Okay. Out of 10, how intense is this fear? It's around 9 and 10. 9 and 10. Okay. Thank you so much. Are you feeling uncomfortable seeing all this? It is dark. It is jungle. What type of jungle? Have you ever seen this jungle before? It's like at Sundarijal. Huh? At Sundarijal. I'm sorry? Place. Okay. It's a place. You have seen that? Mm. You have been there? Did you see anything there that time when you went there? Yeah, I've seen like big lizards Big lizards. and like centipedes. Can you see that same big lizard right now in the same jungle? Mm. How are you feeling? Not good. Not good means what? Scared? Mm. Can you see her facial expressions? She's not feeling comfortable at all seeing that. Open your eyes. Now since this is not very very intense fear, we did it in associated mode right now. We should have disassociated. Fears are too intense, so we can always use the disassociated mode. Disassociate mode में उनको किसी स्क्रीन पे दिखाना तो उतना डर नहीं लगेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. ये क्या था? एक टेस्ट. बिफोर वी टेक अप अ केस, बिफोर वी बिगिन टू डू द एक्टिविटी, we need to identify, is that a fear, very intense fear, and if it is an intense fear, what is the intensity of that fear? So we measured it around 9 or 10, correct? And that means it's a very intense fear. So initially, and we also need to find out the clues. As I said, that memory thinks in the
language of pictures. So there are certain pictures which are there from the past experience, sometimes from the imagination, sometimes you might not have gone there. जैसे आपने बोला ना किसी ने बोला कि सांप आएगा तो काट लेगा, तो ऐसे जो केसेस होते हैं जहाँ पर हम किसी की बात सुनकर उसको रियलिटी मान लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एन इमेजिनेटिव पिक्चर. बट इन केस you have been through such kind of experience, you must have visited some place or you have gone through, the most important part of this activity is to identify where this all started from. I also asked her that when did it all start. She was not able to identify, but then she was able to reach to a place that there is a there is some agricultural land and there is some place where there is lot of water flowing through it and there are roots. So she was able to connect. तो जब हम किसी को फोकस करने के लिए बोलते हैं, ऐसा ट्रांस डेरिवेशनल सर्च, हो सकता है इन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा हो, लेकिन जब आप उनको फोकस करा के उसके रूट कॉज की तरफ लेके जाते हो एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द फर्स्ट इंसिडेंस व्हेन दे फेल्ट दिस काइंड ऑफ फियर और फोबिया, they could identify, yeah, this was the time when this was the first attack or this was the first attempt where I could feel this fear, intense fear. So आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ना डिस्कशन करने का टाइम पे, सबसे इम्पॉर्टेंट है टू रीच टू दैट रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. What is the root cause? Of course there is a trauma, of course there are certain rotten pictures, some information which are lying which has no relevance but they are not adding any value to her or him. तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है. I did identified couple of pictures in her process related to the water, जबकि वो water कितना कम था ना, but the water was not it was the fear was not about water. Let's try and check out from her. आपने बोला कि I cannot go in the I don't go in the river, I don't. Can somebody give this mic to her? एंड यू हैव नेवर, आप जनरली स्टीमर में बैठ के चले जाते हो, है ना, चाहे मरना पड़े पर जाओगे ज़रूर. तो फिर वो आप जब स्टीमर में बैठ के जाते हो तो वहाँ तो डूबने का कोई चांस नहीं है. लेकिन लेट्स क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दिस टाइम. आपने कौन सा बीच देखा है, कौन सा बीच देखा है आपने, एक बताओ. गोवा. क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दैट यू आर क्लोज टू the Goa beach, okay, close to Goa beach, and you're going in, going closer to the waves coming here and going back, and now you're very close to it, like just 1 feet away from the water you can see shallow waves. Just step into it, your first leg, your first feet into the water. How are you feeling when the water touches your feet? How are you feeling? Sir, cool. It's good? Cool sir, cool. Cool. Step into it. थोड़ा सा आपको स्विमिंग आती है क्या? नहीं सर. हाँ अच्छा कोई बात नहीं, चलो. Okay, step into it. थोड़ा सा और आगे चलो. And keep moving inside till you reach the height where the water height is approximately up to your knees. How are you feeling when you see the water all around you? You are almost 10 or 15 feet inside. The waves are coming in and going back. And you are almost up till knees you are in water. How are you feeling? I feel so good sir. You are feeling? Good sir. Good. How is this experience? Relaxing sir. Okay, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी था आपकी लाइफ में जब आपको रिवर में जाने का मौका मिला पर आप गए नहीं? बहुत सर. Just tell me one experience. जब मैं बैंकॉक में भी. बैंगलोर. बैंकॉक सर. बैंकॉक में थे, वहाँ रिवर थी? हाँ सर. अच्छा, तो उसमें आपको जाने के लिए किसने बोला था? My cousin brother. But you did not go, even close to it. Yeah sir. So we will now go closer to the Sir, same river. Yeah. मैं गई थी लेकिन उसको भी वहीं पे डाल दिया सर. मैं गई थी सर, उसको भी इतना कस के पकड़ा, तब अंदर जाना पड़ा. नहीं सर, उसको भी मैंने वहीं पे गिरा दिया, डुबा दिया. अच्छा नहीं, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट इन द सेम रिवर
Now you're going very close to it. There's nobody to push you. You're just stepping in till you feel safe, not to go into deep water, but start moving in, step into it. अगर ये सिचुएशन उस समय पे हुई होती तो क्या आप पैर अंदर रख देते थे क्या? नहीं. अब आप रख पा रहे हो, अंदर जाना हो पा रहा है. चलो जहाँ तक आपको लगता है कि सेफ है उतनी डेप्थ तक आप चले जाओ. कहाँ तक वाटर आया? नीचे थोड़ा सा कम. नी से थोड़ा सा नीचे. सेफ फील हो रहा है? जी सर. फीलिंग गुड? यस सर. ओके, कम बैक. तो अगर यही एक्सपीरियंस मैं इनको इस फोबिया क्योर से पहले करा देता तो शी वुडंट हैव स्टेप्ड इन इवन द वाटर, ऑल्दो देयर वाज नो वाटर, पहले भी नहीं था. तो ये जो है ये टेस्ट है. नाउ इवन इफ शी गो इनटू रियलिटी, she will be able to go into river also, into beaches. She will be able to enjoy the beaches also. Now no problem, है ना. स्विमिंग सीख लेंगे तो फिर और डीप वाटर में भी जा सकेंगे. तो ये डर ख़त्म हो गया. तो ये हमने टेस्ट किया है. सिमिलरली कोई भी ऐसा फियर है, हमने टेस्ट किया स्नेक का. पहले वो स्नेक से कितना शिवर कर रही थी एंड देन शी इवन टच द मोबाइल बट देयर वाज अ पिक्चर ऑफ स्नो, द वीडियो ऑफ स्नेक. तो हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा. दिस इज़ द फर्स्ट पॉस एंड वी विल ऑल्सो हैव टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द फियर. अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तो मैंने इनको एसोसिएटेड मोड में ले गया. कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि आप उनको बोलोगे कि ओके गो टू द जंगल एंड दे विल से नो 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 आई कैन नॉट गो. सो देन यू हैव टू पुट इन द फिल्टर्स. यू हैव टू सी वेदर दैट पर्सन कैन गो इन टू द डिसएसोसिएटेड स्टेट और यू हैव टू टेक दैट पर्सन इन टू डबल डिसएसोसिएट टू एक्सपोज टू दैट पिक्चर. डबल डिसएसोसिएट से तो 100% वो देख ही लेगा. समझ में आ गया ना कि डिसएसोसिएट क्यों यूज़ करते हैं. इफ समबडी इज़ वेरी मच फ्राइटन्ड देन यू हैव टू यूज़ दोज फिल्टर्स. स्पेसिफिकली एज आई सेड इन phobias, fears, bad memories, is traumas and all that. Now we are going to the starting process. Once you have identified the pictures and the incidences where it all started from or which are the root cause of the problem, then you will identify two pictures which are happy, relaxing pictures. One before the incidents, one after the incidents. It can be two happy pictures. She identified two. One Australia, her daughter came from Australia, gave a surprise. Another picture, she said that I'm coming to NLP program. So these are the two happy pictures. You have to check whether this is a happy picture or not. मैं बताता हूँ आपको. At times females say when my child was born, my daughter or my son was born, I was very happy. I generally tend to avoid that picture. Why? Because along with the happiness there is a pain also. So I generally prefer not to use those kind of pictures because deep subconscious, yeah, you were happy but there was a pain also which was also connected and associated with that picture only, है ना. तो you have to be a little bit careful about picking up what picture I should take up, right? ये हो गया. We identified two good pictures and we identified couple of, it can be one picture, two picture, three picture, four picture or multiple pictures which relate to the phobia of that person. Multiple pictures भी हो सकती हैं किसी की लाइफ में, ठीक है. जैसे आपके केस में आई विल नॉट डिस्कस द स्टोरी, बट अगर आप सिर्फ वो इंसिडेंट्स जो आपका सेकेंड ईयर में हुआ था, सिर्फ वो सेकेंड ईयर के इंसिडेंट्स को आपने याद किया और उस पिक्चर को नोट डाउन कर दिया, तो दैट इज़ योर रिसोर्स जहाँ से आपकी बीमारी की शुरुआत है. अगर आपने उस समय पे उसको क्लीन कर दिया होता तो आज की इस कंडीशन में आप कुछ और होते हैं. सिर्फ उतना सा काम करना था बस. इट इज़ दैट वेरी सिंपल, ठीक है. तो यू आइडेंटिफाई दैट दोज कपल ऑफ पिक्चर्स जो 1, 2, 3 जितनी भी हैं, प्लीज़ कीप नोटिंग इट ऑल. और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन, व्हाई डिड आई टेक अ डायरी, you should use the same terminology that the other person used, because when you are talking about a picture, when you say the same word, the person will be able to relate to the same picture. Otherwise, if you change the word, the picture may also change. As I said, there is a word related to a picture. So when the other person says the vocabulary that the person is using, we need to use the same vocabulary to be in rapport. Else if we try to use our own vocabulary, the person may not relate to the situation.
So I said, आपको याद है ना वो पिक्चर जिसमें आपकी डॉटर केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी वॉज वियरिंग अ ब्लैक टी शर्ट एंड अ ब्लैक ट्राउजर. वाई डिड आई से दिस वॉज द स्पेसिफिक पिक्चर आई वॉन्टेड, not any other picture. So she will be able to correlate it actually in a proper way, right? And then we found out couple of unresourceful pictures. कोई गेम खिला रहे होंगे ये लोग. Okay, unresourceful pictures. अब हमारे को क्या करना है? We have to create a sandwich. We will start from current situation to the past in the reverse order, not from childhood to current age, rather from current age to the childhood in the reverse order. So I said the current picture of coming to NLP is 3. The unresourceful pictures, kitni bhi numbers mein, they were all 2, and there was a picture of Australia wala picture that was 1. So we named the pictures so that when I say 3, she could understand what picture she has to see. Just a correlation. And then I said, let's go to a cinema hall. You are sitting on this chair. From there you are seeing this on the screen. Why? I am double disassociating her now. And after double disassociation, see a picture on the screen. This movie is all about you. What is the picture? Picture is 3, 2, 1. 3 is first picture. Enjoy the picture. 2, change the submodality by painting it with some color, white or black, whatever she likes, and then jump to picture number 1. Enjoy this picture. Don't erase this picture. Don't wipe it out. Then we say clear screen. What does that mean? It is a break state. Or I say take a deep breath. It is again a deep break state. So we do a break state. Again come back. 3, clear 2, jump to 1, break state. Come back 3, 2, 1. Repeat this process couple of times. You have to calibrate. You have to observe the facial expression, the breathing speed of the person. The person who is really scared initially will breathe fast. You can see the expressions on the face. The person scary, maybe sweating, maybe feeling uncomfortable. Slowly and gradually you will see the person is calming down, relaxing, feeling okay. And whenever you feel now the expressions are absolutely normal, you can stop. It can be 15 times, 20 times, 25 times. Then you can check out, are you able to see the pictures? Yeah, I can see not clearly, but thoda thoda dikh raha hai, chalega. This is part 1. Then we have to repeat the same process in disassociated state. First we did in double disassociated. Stage 2, disassociated. So as I said, now you are seeing it yourself on this screen. There is a screen in front of you, you are watching it on the screen. That's it, disassociated state. Again 3, 2, 1, 3, 2, 1. 5, 10, 15 times, as many number of times you want. Then it is the time for testing. So I took her to associated state. Now you are experiencing all of this yourself. There is no cinema hall, there is no screen, you are doing it on your own. And then we again started 3, 2, 1. But now here I added one more component. That was, जब 2 number आता है, तो I added a hilarious picture or sound into it, which made her feel lighter. It can be some sound, it can be some video, it can be some dialogue, which makes the person feel good and happy and light. So she added up something, I don't know what she added, but which was making her feel like laughing. Okay, वो मुझे नहीं मालूम क्या resource था, but whatever she picked is fine. And then you see, when she was coming to the picture number 2, now she was smiling rather than being frightened of. 2 number पे आते ही she started smiling. We did couple of times, 5 to 10 times we repeated the process, and now I was very sure that is done. So the process is over now. Now it is the time to test again. So test करने के लिए I took her to the same scenarios again. Earlier she said it is 10 out of 10 fear. I measured that earlier, and now again take her to the same scenarios and asked how much of fear you are feeling. And she said it is none, I am feeling normal. In fact, while seeing the snake, she was smiling. Because in the last
in the last level or last stage, I added that fear, the smile or happiness component in terms of audio and visuals along with those pictures. So instead of getting frightened of, she was smiling seeing the snakes. Okay, her entire behavior changed. Now she is not afraid of snake. And as I said, there may be something below your chair. Nothing was scaring her. So this was the test which made us sure. अब आपके किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये ऐसा तो आप बोल रहे हो, स्नेक है नहीं है, सच में तो नहीं है, उनको भी पता है कि सच में स्नेक नहीं है. आपने वो फर्स्ट डे वीडियो देखा था ना, फेक हैंड वाला, ठीक है, बस वही सिचुएशन है. तो जब मैं उनको पहले भी स्नेक नहीं था, पहले भी रूट्स नहीं थे, पहले भी वाटर में कोई स्नेक नहीं था, बट शी वॉज फ्राइटन्ड. अभी भी नहीं है. आई मीन इट इज़ ऑल एट द लेवल ऑफ इमेजिनेशन. तो पहले भी फियर इमेजिनेशन के लेवल पर था और अभी भी फियर इमेजिनेशन के लेवल पे. और आपको मालूम होगा कि द रूट कॉज, मेजरली द रूट कॉज ऑफ मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ फियर इज एन एजम्पशन दैट समथिंग विल हैपन टू द पर्सन. मैं अगर अंधेरे में गया तो ये हो जाएगा, अगर मुझे खांसी हो गई है तो कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है. एक एजम्पशन होता है फियर ऑफ डिजीजेस के केस में. फियर ऑफ कैंसर एक फोबिया होता है, फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ डिजीजेस. उसमें क्या होता है कि द पर्सन इज़ ऑलवेज, अगर उसको खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया, हल्का सा बुखार हो गया है, गले में यहाँ पे हल्का सा पेन हो गया, तो उसको लगने लग जाता है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, ऐसा उसको आभास होने लग जाता है. दैट इज़ फियर ऑफ डिजीजेस. देयर इज़ अ वेरी कॉमन फियर और फोबिया, फियर ऑफ लूजिंग पीपल. कभी कभी किसी की ज़िंदगी में उनका बहुत ख़ास व्यक्ति कोई दुनिया से चला जाता है, तो दे हैव अ कांस्टेंट फियर कि कहीं मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरी पापा तो नहीं चले जाएंगे. दैट कांस्टेंट फियर इज़ बॉदरिंग. देन देयर इज़ अ फियर, दीज आर सम कॉमन फियर्स, बहुत कॉमन है. फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ डिजीज है, फियर ऑफ कैंसर है, फियर ऑफ वाटर, हाइट, प्लांट्स, सी, नीडल्स, डॉक्टर्स, fear of clouds, fear of water as we did. ये बहुत कॉमन फियर्स हैं. दीज आर वेरी, मतलब हर 15-20 लोगों में से 2 जनों को मिल जाएंगे आपको. बहुत ही कॉमन है. और बाकी कुछ ऐसे हैं जैसे फियर ऑफ होल्स, फियर ऑफ गोस्ट. वो तो सबको लगता है ना थोड़ा थोड़ा. उसके पीछे तो हमारे घर, हमारी अपब्रिंगिंग होती है. एक्चुअली बचपन से हमें सिखाते ना, बेटा बाहर गया तो भू आ जाएगा, ऐसे हम डराते ना बच्चों को, उससे भी होता है. लेकिन फियर ऑफ गोस्ट तो एक डार्कनेस से एक नेचुरल डर सबको होता है थोड़ा थोड़ा. फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये थोड़ा सा डर सबको होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो डार्कनेस में बिल्कुल नहीं जा पाए तो फिर दिक्कत है ना. गोस्ट से सबको थोड़ा थोड़ा तो डर लगता है. ओके, एनी डाउट्स अबाउट द प्रोसेस? एक